Hello, good morning, ma'am. Hello, good morning. How are you? Fine, ma'am. What about you? Okay. Good morning, everyone. Here I am Radhika Sharma, and here we have Shivali Kalra, is an ace fashion costume designer and fashion forecaster writer. This self-made entrepreneur runs her label Sana Shivali and has on many allocates till date. Today she will tell us about the sustainable fashion or a wearable technology. Yes, ma'am. Yes, hello everyone. Good morning. And I hope everyone is holding up fine. You're not actually bogging down with this pandemic hai aur ye hai wo hai. So all we need is that we need high spirit to survive in this, and we shall pass through it very soon. And I hope students are also taking it in a very positive, way. So, would you like to ask any questions? Like today's topic is about sustainability and technology versus sustainability. And what I think is that both these, categories and these aspects are very important, to survive. So we'll touch these topics, sustainability and technology both. And in what ways can we help, to grow our fashion industry in this and to make a bit, changes in our fashion industry for sure. So we'll talk about the face of fashion, changing face of fashion, and how we look, future of fashion to be. So if you have any questions, you can ask me. Yes, ma'am. I have a question. Actually, what is the wearable technology? What is wearable technology? You Yes, said. ma'am. Okay, wearable technology. It is like all the electronic devices that we use, in our whatever we wear, like a watch. It can be a watch. It can be a headset. Eyeglasses. Everything is wearable technology. Now we're introducing wearable technology in our garments as well. हमने इसको हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत ज्यादा ले लिया है. अगर आपने देखा होगा कितने सारे सेंसर्स होते हैं, there are so many devices which are attached to your garment. They can be woven into the garment, या फिर हम टैटू भी करा सकते हैं उसको स्किन पे, या फिर उसको हम बॉडी के अंदर भी ले सकते हैं. So there are many ways, wearable technology is working. And as far as this pandemic is concerned, अब आने वाले time पे when we've seen the worst, which is hitting our nation, our world, then I know that there'll be a growth in technology, far more than what it used to be. So it'll be more like, robotic ways of living life. This is what wearable technology is, that we'll need more, sensors and devices attached to our garments. Radhika ma'am, are you there? Yes, ma'am. Okay, I can't see you, right. So I thought I lost you. So wearable technology, जैसे हमने बोला ना कि I mean, hardly people know that it existed from 13th century when there was the first piece of eyeglass that we ever had. और उसके बाद में 15th century में हमने time pieces introduced करे. Human beings जब से आए हैं, we try to make our life easy, introducing the technology, making innovations and inventions, and we cannot do without technology. And now it is mandatory to have that in our, the garments as well.
So after this pandemic, this is what I think, whenever people, they're more scared, we have this fear कि आगे आने वाले time में, what all diseases we're going to hit and what all viruses we're going to hit, mankind. But then when you have this garment on, जिसमें sensors लगे हैं, anybody would pass by and you would know that, you have to keep distance from this person. There's so many other ways. Healthcare system में हमने introduce कर दिया है already, बहुत ज़्यादा और helpful भी है. So wearable technology, even in yoga pants and everything, you can, just, if you search about it, you'll know more about it. So it keeps the track of the body heat temperature. There's so many other things which can be touched upon in wearable technology. And it is the future, yes. Can a market be built as sustainable fashion? Sustainable fashion, it has been looked upon as a very dull market. Yes. Whenever we talk about sustainability and sustainable fashion, even those fashion students or the designers as well, we think that we cannot hit the market that well. It is not profitable. But on the contrary, what I think is sustainable market is very, it's the upgrowing market now, and it is profitable for sure. So why not? When we talk about sustainability, we talk about reusing, recycling, making the wiser use of the textiles, choosing wise, from the consumer to the manufacturer. Everyone is choosing wise. और जब हम रेंटल्स की बात करते हैं, रेंटिंग आउट ड्रेसेस, दिस हैज बिकम अ ट्रेंड एंड स्पेशली अब्रॉड. इंडिया में इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है अभी तक, बट देन अब्रॉड पीपल आर गेटिंग इनटू दिस नाउ. अब रेंटल में you just have one garment, आपने एक बार प्रोड्यूस करा, then you're renting it out again and again. So this is getting you the revenue. If you talk about revenue, एक प्रोडक्शन पे आप रेवेन्यू कमा सकते हैं and multiple times, right? And then if we talk about recycling and reusing, हमारी कॉस्ट कम जाती है उसमें, हम उसमें और वाइजर तरीके से उसको बेच सकते हैं. Then again we're making profits on that as well. There's so many ways. फिर उसके बाद में if we come to the other segment where we're making something new, जब हम choose करेंगे wisely, we're getting more of quality and more of handwork, and we are giving opportunities to our weavers and artisans. That is also sustainability. So the quality will get us more money, right? अभी हम सस्ते के चक्कर में we're misusing the resources of our planet. सस्ता बनाना है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक्चुअली हम बहुत बड़ी कॉस्ट पे उसको बना रहे हैं और बेच रहे हैं, because the planet is suffering, the resources are getting scarce. But the thing is, what is the future of this fashion? Future of fashion, I see that future of fashion I see as we are balancing down technology, definitely, and sustainability for sure. If people like us won't come forward, to create awareness or to bring about sustainability in the market, then definitely it's going to cost a lot to mankind, to human beings. और अब फ्यूचर में अगर हम देखें कि सस्टेनेबल फैशन किस तरह से हम उसको अडेप्ट कर सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी को किस तरह से अडेप्ट कर सकते हैं, वी हैव टू मेक द कॉन्शियस चॉइसेस. फिर हम फ्यूचर ऑफ फैशन को डेफिनेटली चेंज हो रहा है. अभी क्या है, व्हाट आर वी डूइंग, वी आर इनटू फास्ट फैशन. हम इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज हैं, एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज्ड, राइट? एंड प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि हमें पता है कि सस्ता बेच रहे हैं तो डिमांड बहुत ज्यादा है. So this is what I call fast fashion, right? अब हमने इसको कन्वर्ट हो जाएगा ये स्लो फैशन. When people want quality over quantity, आप थोड़ा खरीदिए लेकिन अच्छा क्वालिटी का खरीदिए जो कि आपके लिए भी अच्छा है, and then you can pass on to your daughters or your family, everyone. Inheritance जिसे हम कहते हैं, जैसे पुराने टाइम में होता था कि एक साड़ी खरीदी और मम्मा ने आगे डॉटर को पास ऑन कर दिया, इस तरह. तो अभी पीछे इतना सारा ये करने के बाद में कंप्यूटराइज, एक तो वो क्वालिटी नहीं मिल रही, वो डिजाइन नहीं मिल रहा, वी लूजिंग द ऑथेंटिसिटी. तो ये बहुत सारी चीजें हैं which come at a huge cost. और आने वाले फ्यूचर में मुझे लगता है कि फैशन डेफिनेटली चेंज हो रहा है. वी आर टुवर्ड्स मोर इको फ्रेंडली, ऑर्गेनिक एंड सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल फैशन.
एक और क्वेश्चन है मेरा, लाइक जैसे जो बड़े बड़े डिजाइनर है, जैसे जस्ट लाइक मनीष मल्होत्रा, तरुण दहलानी, ये सारे हॉट couture में काम करते हैं, क्या लगता है कि ये सस्टेनेबिलिटी फैशन को अडॉप्ट करेंगे? क्योंकि ये मोस्टली क्यों करेगी? क्योंकि हम लोग पूरी तरह से, मतलब एकदम से अगर आप सोचें कि पूरा ये टर्नओवर हो जाएगा एंड यू नो एवरीवन विल गेट इनटू दिस, देन नो, बट देन दे हैव टू मेक अ चेंज। आपके पास अगर बायर्स नहीं होंगे, राइट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हाई एंड फैशन एंड वी डोंट हैव बायर्स, वी डोंट हैव कस्टमर्स जो कि रोज के, हमें अगर हम प्रोडक्शन कर भी रहे हैं उस हिसाब से, ऑब्वियसली वी नीड टू मेक द रेवेन्यू, यू नो इट शुड कीप रोलिंग। अगर हमारे पास कस्टमर ही नहीं है, हम उसको बेच ही नहीं पा रहे हैं जितना हम पहले बेच पा रहे थे, तो वो सेंस नहीं बनती। इवन द डिजाइनर्स विल यू नो फाइंड the sources or their own reasons to put the production down, to limit it to some extent. और फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, then again we'll come back to sustainability, जहाँ पे हम प्रोड्यूस कम कर रहे हैं। जब हम प्रोडक्शन हमारी कम हो रही है तो नेचुरली हम रिसोर्सेज सेव कर रहे हैं, हम कॉन्शियसली सोच रहे हैं। और सिर्फ तरुण दहलानी या बड़े बड़े डिजाइनर्स ये इंडिया में ही नहीं, one company H&M has already started, Burberry is looking into that, you know, sustainability. There are many designers who are working on sustainability because we all know that this is the need of the hour. We cannot sustain without that. Garment industry जो है ना, वो world की second largest populated polluted industry है, you know, and it is the biggest industry as well, क्योंकि 480 billion पे अभी है, and in the coming years we see it growing as so. एक होता है ना रोटी कपड़ा और मकान, these are the necessity of life, you know, हमारे सर्वाइवल के लिए हमें बहुत जरूरी है। तो कपड़ा तो हमेशा रहेगा ही, लेकिन हमने उसको बहुत सही तरीके से अब आगे मैनेज करना सीखना है कि मार्केट में हमें किस तरह से देना है, हम कैसे उसको प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूमर्स तक कैसे पहुंचा रहे हैं। तो बहुत सारे स्टेप्स हैं जो ऑलरेडी देखे गए हैं, और जो हम अगर बड़े यू नो ब्रांड्स की बात करें हाई एंड, तो उसमें बहुत सारा प्रोडक्शन ऐसा है जो वेस्ट जाता है। You know, there's so many brands like Louis Vuitton or Burberry. We don't want to, you know, put on discount कि आप discount लेके आप उनको बेच दें, and all we do is then we burn them. Then again, you know, it is polluting our environment. Again, we are not, you know, wise enough to make that production जितना कि हम consume कर रहे हैं, हम लोग ज़्यादा produce कर रहे हैं लेकिन उतना consume नहीं कर पा रहे हैं। Everyone is working on that now, and designers are aware and they are working on it. start with the PPT now. Sustainable, the future of fashion. Hello. Hello. Let's start with the PPT. Okay. So now it is again, you know, we're talking about sustainable fashion की definition जो है, you know, this is what we're talking about here. So first comes the eco fashion, which refers to how the garments impact the environment. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि garment का मतलब किस तरह से impact हमारे environment पे हो रहा है, हम उसके बारे में बात करें। Then we come to slow fashion. Slow fashion is quality fashion, जैसे कि हमने बात की है पहले. So it is quality fashion,
जो कि हम लोग क्वालिटी मेंटेन करके बनाते हैं, एंड देन वी गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू आवर वीवर्स, टू आवर आर्टिजंस, हम एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं उससे। सो इट इज स्लो फैशन, जो कि आप थोड़ा लो लेकिन क्वालिटी लो। देन कम्स एथिकल फैशन। Ethical fashion is जहाँ पे chemical का, we see that chemical treated garments नहीं है ज़्यादा, textiles हम उस तरह से choose कर रहे हैं। Then we are taking care of the health standards, उसको पहनने से मतलब जहाँ से वो प्रोडक्शन हो रही है यहाँ तक के लिए उसके कोई health hazards तो नहीं है कहीं पे। Then we talk about the community that is manufacturing the garment. तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि एथिकल फैशन में जाते हैं, और आप अगर देखेंगे तो एथिकल फैशन पे ऑलरेडी बहुत सारे ब्रांड्स और बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं, नो मैटर व्हाट, एंड दे ग्रोइंग लाइक नाउ इनटू दिस सेगमेंट. And then we come about sustainable fashion. It is an umbrella to protect our environment. We're just making an effort to protect our environment. अगर हम लोग ही नहीं रहेंगे तो ये फैशन और ये कपड़े कौन पहनेगा, अपीलिंग कौन लगेगा और ग्लैमरस कौन लगेगा? तो आज की डेट में भी बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन अराइज हो चुका है, अब सबके दिमाग में आ रहा है। लोग पहले सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे थे लेकिन कोई उसको अपनाना नहीं चाह रहा था। अब इस सिचुएशन में आने के बाद when this pandemic is hit us so bad, अब हमें पता चल रहा है कि हमें कितना जरूरी और कितना इम्पोर्टेंट है अपने एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचना, अपने प्लानेट के बारे में भी सोचना, और उसको किस तरह से हम उसके रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज करें, मिसयूज नहीं करें, ये सोचना। दिस इज ऑल सस्टेनेबिलिटी। और फैशन इंडस्ट्री, जैसे कि हम सब जानते हैं, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो क्यों नहीं हम सब मिलकर इस पे काम करें? यहाँ पे हम आते हैं रिस्पॉन्सिबल फैब्रिक सोर्सिंग डिसीजन। सो इट इज अ गाइड, जैसे कि हमने पुराने कपड़े को, ओल्ड स्टफ वो फेवर करा नए पे, जैसे हम लोग पहले करते थे। पहले के टाइम में अगर मम्मा की कोई साड़ी है तो हमने पहन ली है, या हमने फैमिली में एक्सचेंज कर लिया है। सो इस तरह की चीजें, पुराने को प्रिजर्व करके रखना, उसको इनहेरिटेंस बताना, और क्वालिटी होगी तभी आप प्रिजर्व कर सकते हो, नहीं होगी तो आप नहीं कर सकते। दूसरा है नेचुरल फाइबर्स यूज करना, सो विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो कि अगर हम केमिकल जितना ज्यादा यूज कर रहे हैं उतना ही ज्यादा हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूटेड हो रहा है। अगर हम नेचुरल पे काम करेंगे तो हम वही उसी से ही नेचुरल, सिर्फ हमने क्या करना है, स्विच करना है। अगर हम नेचुरल फाइबर यूज कर रहे हैं तो हम एक बेटर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, विच इज अगेन इको फ्रेंडली। और उसके बाद में इजी केयर। इजी केयर का मतलब है जिस चीज से कि लेस इम्पैक्ट हो एनवायरनमेंट। So that is easy care, which can be caring for everything. Then care. तो चेक करना, हाँ जी बताइए। तो फेयर का मतलब है ये चेक करना कि कहाँ पे ये फेयरली बना है। यस। Radhika ma'am, can you hear me? Yes, ma'am. Yes. Okay. You want me to go on? Yes, ma'am. Yeah, we can switch to the other one now क्योंकि quality पे हम already बात कर चुके हैं। Sure. So, Is it creating pictures, stripes? अब इससे ये ग्राफ है ना, जो अगर आप इसको स्टडी करेंगे तो इसमें है कि क्लोथिंग परचेज की क्या इंपॉर्टेंस है, कि हम उसको परचेज कर रहे हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और इस ग्राफ को हमने कंट्री वाइज मतलब एक वो दे रखा है, ग्राफ बना रखा है, कंट्री वाइज परसेंटेज पे उसको डिवाइड कर रखा है। सो इट इज जस्ट अबाउट द सस्टेनेबिलिटी, कौन सी कंट्री कितना ज्यादा काम कर रही है, देन परफॉर्मेंस फीचर्स हैं, कलर है, सॉफ्टनेस है, स्टाइल है। So this graph is mainly divided, country wise. So we can just go through this, India, China, Mexico. So India comes at the highest at 60%. So this is a concern क्योंकि हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी ज्यादा होती है और हम पोल्यूट भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं. So it comes as a main concern to work for our nation.
हम क्योंकि हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम है। तो यस, नेक्स्ट मैम। so this is a very important thing to know कि हम एक शर्ट जो कॉटन शर्ट बनती है उसमें हम 2700 लीटर्स ऑफ वाटर यूज करते हैं, जो कि 2.5 साल में एक इंसान यूज करता है। तो एक कॉटन शर्ट उतना कंज्यूम कर रही है, तो हमारे पास क्या रह जाएगा जब हमारा पानी ही खत्म। एंड वी नो दैट वी आर टुवर्ड्स इट, जहाँ पे हम देख रहे हैं दैट वी द वाटर इज गोना बी स्कार्स, किसी को भी पानी नहीं मिलेगा आने वाले टाइम पे, और हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। then why not, ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए है, to tell all the students and teachers. I'm sure the teachers know, the staff know, and the students have to be made aware that this is what we're working on. We have to work for this, to save water, to save our environment. And sustainability is all about that, because this is sustainability, talking about sustainability, and these are our major concerns आने वाले future में देखें। और 60% was reported in the number of garments bought by an average consumer in 2014 as compared to 2000. आपको पता है कि 60% इंक्रीज हुआ है गारमेंट इंडस्ट्री की सेल्स में, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। इस वक्त हमें इतना ज्यादा खरीदने की होड़ लग गई, सस्ता खरीदने के चक्कर में हम लोग बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं और पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। तो इसलिए इंडस्ट्री में जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा एनवायरनमेंट को ये थ्रेट है। और पूरे वर्ल्ड का, एंड वन थिंग मोर दैट आई वांट टू से, पूरे वर्ल्ड का जो है ना 5% लैंडफिल वी आर यूजिंग टेक्सटाइल, वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। 20% of the garment industry, it is polluting. 20% of water bodies are getting polluted by the garment industry. और दूसरा, जब हम ये लैंडफिल की और वेस्टेज की बात करते हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम वेस्टेज को किस तरह से यूज कर सकते हैं इन आवर गारमेंट। और जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स किस तरह से कर रहे हैं, देन वो लोग सिर्फ, अगर एक कंपनी एक सिर्फ इतना सा ही देख ले कि हम वेस्टेज को यूज कर लें, दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प टू सेव द एनवायरनमेंट। आई थिंक इसमें वर्कशॉप्स लगनी चाहिए, लाइक जैसे कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज है या मिल्स है, तो कि वो कैसे सस्टेनेबिलिटी को हम आगे लेके जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि हमारे वेस्टेज है, ठीक है, कई कंपनीज ने ऐसे भी काम करना, और हम कर भी सकते हैं कि हम दूसरी कंपनीज के साथ टाई अप कर दें कि आपका इतना फैब्रिक वेस्ट हुआ है, जो भी आपका वेस्टेज है आप वो हमें दे दीजिए, देन वी रिसाइकल इट एंड मेक इट इनटू अ न्यू गारमेंट। वेस्ट इकट्ठा करो, वेस्ट इकट्ठा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम 5% लैंड की बात करते हैं ना, कि वो टोटल वेस्ट उस पर डंप किया हुआ है गारमेंट वेस्ट, 5% लैंडफिल ऑफ द एंटायर वर्ल्ड मीन्स अ लॉट। हमने कितना वेस्टेज में उसको ऐसे ही बर्बाद कर रखा है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें। और दूसरा, नेचुरल फाइबर्स यूज करना, कंपनीज ये भी कर रही हैं, नेचुरल फाइबर्स यूज कर रही हैं, देन दे गेटिंग बैक टू द ओल्ड हेरिटेज आल्सो। अगर हम इंडियंस होके हम अपना हेरिटेज ही प्रिजर्व नहीं कर सकते तो उस चीज का क्या फायदा। इफ यू लुक टू कंट्रीज लाइक जापान, दे हैव स्टिल प्रिजर्व देयर हेरिटेज, और हर एक कंट्री को करना चाहिए, और ये सब हम मिलकर ही कर सकते हैं। देयर मेनी स्टेप्स। और एक चीज और होती है स्वैप। अभी स्वैप जो होता है ना, वो किसी को हमारा प्रोडक्ट चाहिए और हमें किसी का चाहिए, सो दिस इज हाउ यू कैन कॉल बार्टर और स्वैप। इस तरह से भी काम। सो नेगेटिव इम्पैक्ट की जब हम बात कर रहे हैं अपैरल इंडस्ट्री का, सो इट कम्स दैट एयर पोल्यूशन, वी नो, habitat destruction, yes, then human rights abuses, food insecurity, animal suffering, water pollution, climate change,
रिसोर्सेज डिप्लीशन, हमें ये सब कुछ पता है कि रिसोर्सेज स्कार्स हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसकी वजह से, क्योंकि जितने गैसेस और फॉसिल फ्यूल्स आप प्रोड्यूस होते हैं, हार्मफुल केमिकल्स जो कि इंडस्ट्रीज में कपड़ा बनता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, उसके बाद जितने भी गैसेस एनवायरनमेंट में जाएंगे और डैमेज हो जाते हैं, उससे बहुत ज्यादा जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो हमारे हेल्थ पे आता है। खासकर आप पानी भी नहीं पी रहे, जब आप वेस्टेज आपका 20% पानी जब पोल्यूटेड है तो हम पानी भी वही कंज्यूम कर रहे हैं। देन आवर एक्वा लाइफ इज आल्सो एट रिस्क, जो कि हम मरीन लाइफ की बात कर रहे हैं। तो बहुत दिस इज अ साइकिल, और इस साइकिल को ही हमें चेंज करना है, तो उस पे ही काम करना है। नाउ वी टॉक अबाउट वेयरेबल टेक्नोलॉजी, और हम सबको पता है खासकर बच्चे भी बहुत ज्यादा फैसिनेट होते हैं, बच्चों से लेकर एडल्ट्स भी बहुत ज्यादा हम लोग फैसिनेट होते हैं कि अच्छा टेक्नोलॉजी है, दिस इज द एप्पल वॉच व्हिच कीप अ ट्रैक, और इसमें सेंसर्स हैं और ये है वो है। शुरू से ही हम लोग बहुत ज्यादा फैसिनेट होते आए हैं टेक्नोलॉजी, हमें बहुत हेल्प भी किया है नो मैटर व्हाट। इसके बिना टेक्नोलॉजी हैज मेड आवर लाइफ इजियर in every way. Everything is technology. From internet, जैसे हम आज बात कर रहे हैं, everything is technology. From our transport to healthcare system to education, every sector is now in technology. तो अब बात करते हैं कि wearable technology की। wearable technology में ये एक टी शर्ट है, सिर्फ एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि दिस टी शर्ट कैन मॉनिटर द ब्लड प्रेशर, क्योंकि हम थर्मोमीटर से करते थे। ये अब एक टी शर्ट पहना, उसी से आपका ब्लड प्रेशर हो रहा है, उसी से आपका टेम्परेचर चेक हो रहा है, और फिर आपकी एक्टिविटी लेवल कि आप कितना दौड़े, कितना क्या करा आपने, इट इज कीपिंग द record of each and everything। तो ये सब चीजें, ब्लड आपका हार्ट रेट है, देन ब्रीदिंग रेट, तो एक ही टी शर्ट ने आपके वो सारे काम कर दिए, आपने सिर्फ उसको पहन रखा था और आप सारे काम वो मॉनिटर कर रहा है। सो दिस इज अ बूम इन द हेल्थ केयर सिस्टम, डॉक्टर्स के लिए, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स के लिए ये एक बूम है। दिस इज द टेक्नोलॉजी व्हिच इज अ बूम। नेक्स्ट राधिका मैम। तो वेयरेबल टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीजें हैं, इसमें ये सारा वो दे रखा है कि कौन कौन से डिवाइसेस हैं। तो यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं कि कौन कौन से डिवाइसेस हैं, आई ग्लास से लेके स्मार्ट वॉचेस हैं, एक्टिविटी ट्रैकर्स हैं, जो कि आजकल लोग हम लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो हम उसको भी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज कर रहे हैं कि हमने कितने स्टेप्स लिए, कितना भागे और कितना हमने वेट यूज करना है, ईच एंड एवरीथिंग। और उसके बाद में हेल्थ के डिवाइसेस हैं जो कि आप सारा, ये हमने सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन दे रखा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि कितना वाइड यूज है इसका। कई बार हमें पता भी नहीं होता, वेरिएबल टेक्नोलॉजी एज अ न्यू वर्ड, लेकिन हम उसको यूज हर रोज कर रहे हैं अपनी लाइफ में और हमें पता भी नहीं है दिस इज वेरिएबल टेक्नोलॉजी। The term has to be specified that this is what it is. The kids who study fashion, they would know कि future में और आने वाले टाइम में हम इस तरह से implement कर सकते हैं अपने garments में। So it is the same graph जिसमें कि अभी तक हम clothing की बात कर रहे थे, watches की बात कर रहे थे, glasses की बात, even our shoes can be that way, electro devices as well, electronic devices. So क्योंकि सब कुछ ही यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, तो शूज भी हमारे उसी का पार्ट है। तो व्हाट वी अंडरस्टैंड, बॉडी मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया, सब कुछ हो गया, द शू, इवन द फुटवेयर, इट कैन बी ऑन टेक्नोलॉजी। एंड एक्सेसरीज बनाने वाले फॉर जितने भी ये शू मेकर्स हैं,
So we're working on a footwear and everything. So it is a big market out there for wearable technology in footwear. Next, please. Do children have a question if they're watching me? Do students have any questions? Yes, ma'am. Coming in? Students have. We can go on with the questions that you have or the students have. Yes, ma'am. We can go on with the questions that you have or students have, to make it more interesting now. Yes, ma'am. एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है इसके बीच में. I have a question, ma'am. Can technology and sustainability go hand in hand? Yes. This is a very nice question, whether technology and sustainability can go hand in hand, and why not? Technology बहुत हेल्प कर सकता है सस्टेनेबिलिटी को रखने में. अगर हम उस सस्टेनेबिलिटी का ट्रैक रखना है, क्योंकि हमें वेस्टेज कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है, देन अगेन टेक्नोलॉजी हेल्प. अगर हमें पानी में से उस वेस्टेज को निकालना है क्योंकि पोल्यूटेंट्स हैं और जिस तरह से हमारी इंडस्ट्री ने उसको पोल्यूट करा है, देन अगेन टेक्नोलॉजी. तो उसके बाद में कि अगर टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं और सस्टेनेबिलिटी की, so it is very important to know that they both, if we work and balance out, technology and help take help of technology and sustainability, we can obviously have a better future in fashion, and we can have a better future with each and every industry. So technology is definitely gonna help sustainability survive. And we shall say together, sustainability and technology, they can go hand in hand. Obviously they can. In technology, we have to take its help, to show sustainability. जैसे आप कह रहे हैं कि ट्रैक रखना, फिर स्टेज को संभालना, हर चीज का प्रोडक्शन करना क्यों होना है, ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करना है, सब टेक्नोलॉजी ही कवर करेगा. Like ऐसे
कौन से हम फैब्रिक्स है जिसको हम रीस्टोर करके रख सकते हैं फॉर द फ्यूचर एंड ऑल? हाँ जी, कम है, कौन से फैब्रिक्स हैं? ऐसे कौन से फैब्रिक है जिनको हम रीस्टोर करके रख सकते हैं? रीस्टोर करके रख सकते हैं। जो फैब्रिक्स की हम बात करते हैं ना, जितने भी प्योर फैब्रिक नेचुरल फाइबर्स से आते हैं, इनके आपके सिल्क्स हो गए, आप कभी मूंगा सिल्क से लेके बनारसी हो गया, दीज हैव ऑलवेज बीन द इनहेरिटेड। और जो ऑर्गेनिक है, ठीक है, हम ऑर्गेनिक कॉटन के बारे में बात करें, और सिंथेटिक फाइबर्स भी हैं जो कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग हैं, विच आर मेड ऑफ प्लास्टिक, और वेस्ट प्लास्टिक से भी जो बनते हैं। सो ये कहीं पे भी नहीं जाते फैब्रिक्स, दे आर ऑलवेज देयर। इनको हम रख भी सकते हैं लंबे समय तक और इनका कुछ जाएगा। लाइक जैसे अगर हम लाइक जैसे अगर हम देखें कि बहुत सारे ऐसे फैब्रिक्स हैं, जैसे कि पहले के टाइम में सिल्क था, कॉटन है, आज भी लिनन है, तो बहुत पुराने टाइम के फैब्रिक्स होते थे, वो अब भी वैसे के वैसे ही होते हैं। लेकिन जो आज के टाइम में हम परचेज करते हैं फैब्रिक, हाँ उनका जी, वो कुछ और ही शेप में या आफ्टर वॉश किसी और शेप में चले जाते हैं। या बिल्कुल, क्योंकि उनका लाइफ स्पैन कम हो गया ना। हमने प्रोडक्शन, अभी हम फास्ट फैशन की बात कर रहे थे, हमने प्रोडक्शन इतना फास्ट कर दिया, उसको हमने ये करने के लिए कि हमें सस्ता बनाना है, सस्ता बेचना है। जब हम सस्ता ही सस्ता कर रहे हैं तो फिर क्वालिटी नहीं आ रही है, तो फिर ऐसे तो होगा ही, उसका भी लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट हो जाता है फिर। तो हमें चूज करना है फैब्रिक भी अपना वाइजली, जो कि हम आगे तक उसको यूज कर सकें। और जैसे ये कॉटन ही मैंने पहन रखे हैं, लेकिन कॉटन में कितना सीजन ये पहनूंगी, वी आर ऑफ। लेकिन अगर हम यही इन्वेस्टमेंट अपना लिनन में करते हैं, उस वो ज्यादा सर्वाइव करता है, इट इज अ लॉन्ग लास्टिंग फैब्रिक। सो इस तरह से अगर हमें लॉन्ग लास्टिंग देखना है तो हमें उस तरह की चॉइसेस अपनानी पड़ेंगी। देन वी हैव टू गो टू द बैकग्राउंड ऑफ द टेक्सटाइल, कि वो कौन सा टेक्सटाइल है, हम क्या यूज कर रहे हैं, और उसका लाइफ स्टाइल क्या है। Students, if you have any questions, send me in a personal message box. एंड राधिका मैम, आई कैन नॉट हियर यू वेरी क्लियरली, थोड़ा सा पीछे से आवाज भी आ रही थी बहुत ज्यादा। अब ठीक है मैम? हेलो? Can we have one workshop with students on this topic? Only Yes, definitely, why not? We can obviously have one workshop। और आपका ये वाला जो क्वेश्चन था कि कौन से वाले फैब्रिक्स पे हम काम कर सकते हैं, जो कि जिनका लाइफ स्पैन ज्यादा है, जो कि सस्टेन कर सकते हैं ज्यादा समय के लिए, तो उसमें से हम बच्चों को ये इस पे गाइडेंस दे सकते हैं, अवेयरनेस दे सकते हैं कि वो लिनन है, वुल है, नेचुरल फाइबर्स हैं जो कि बैम्बू से आते हैं, देयर सो मेनी अदर फैब्रिक्स। तो हम इस तरह की वर्कशॉप कर सकते हैं कि जो बच्चे इस पे गारमेंट अपना बना के या घर पे ही जो पड़ा है उसका यूज करके, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रिसाइकल एंड रीयूज एज वेल। तो वी कैन डेफिनेटली हैव वन इंटरेस्टिंग वर्कशॉप विद द किड्स, एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर देम आल्सो कि वो कुछ प्रैक्टिकली कर रहे हैं बजाय कि सिर्फ सुनने के। जब तक हम प्रैक्टिकली करते नहीं है तो हमें वो चीज समझ भी नहीं आती और मजा भी नहीं आता। और फैशन में तो है ही ऐसा, इट इज ऑल क्रिएटिविटी। okay. Can we look forward to your support, ma'am, in this in this workshop or in this on this topic? Yeah, definitely. You can always look forward to my support in every which way, क्योंकि हम लोग काम कर ही रहे हैं sustainability पे, and I would love to have one fashion show with you, with the students of Pinnacle. And it's a, I have visited your institute even before, and I really like the spirit and the way बच्चे जिस तरह से काम कर रहे हैं, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और आप लोगों का भी जिस तरह से आप उनको गाइड कर रहे हैं,
So we can definitely work upon, one show with them, giving them some sort of project. And जैसे हमने बोला कि workshop है, तो उस तरह से उनको देख के we can definitely come up with something very interesting for them. और हर तरह की support के लिए I'm always there. Thank you so much, ma'am. My pleasure. Like, what are the other ways to create awareness for the sustainable fashion? Yeah. What are the ways to create awareness? Yes, ma'am. In sustainable fashion. In sustainable. अब सस्टेनेबल फैशन की हम लोग बात कर रहे थे, तो उसमें ये तरीके हैं. एक तो हमने बोला कि रेंटल, ठीक है. अवेयरनेस, अभी जैसे हमारा एक सेशन हो रहा है आपके साथ में, हम बात करके अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं. इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि जो शायद पहले लोगों को लगता था कि सस्टेनेबिलिटी से प्रॉफिट नहीं आ सकता, वो क्वेरीज क्लियर होती हैं कि सस्टेनेबिलिटी आपको प्रॉफिट दे सकती है. वी कैन मेक मनी, in this industry as well when we are promoting sustainable fashion. लेकिन उसका तरीका सही क्या है? It is not a dull industry. दूसरा, अवेयरनेस आ रही है सेमिनार्स, अवेयरनेस आ रही है, अवेयरनेस आ रही है इंटरैक्टिव सेशंस से, और to just raise the voice and be the voice of the campaign. दूसरा तरीका है अवेयरनेस, हम लोग रेंटल की बात कर रहे थे. Then again reuse and recycle and sell. उसके बाद में तीसरा तरीका आ जाता है फैशन शोज, डिस्प्ले. जो हमने कलेक्शन बनाया है उसको डिस्प्ले करना, उसको बेचना. दैट इज अगेन और फैशन शो आजकल जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इस पे कर रहे हैं. अगर आप बाहर नहीं कर सकते, फॉर्म नहीं कर रहे हैं, वर्चुअल फॉर्म में भी हो सकता है हर चीज. और उसके बाद में अगर हम बात कर रहे हैं इसकी स्वॉपिंग ड्रेसेस, अगर आपने सुना होगा, हम पार्टीज बहुत करते हैं. एज ह्यूमन बीइंग्स हमें बहुत शौक है पार्टीज करने, लेकिन उसमें हम ये क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं, देयर इज दिस स्वॉप ड्रेस नाइट टुडे, कि एक ड्रेस अगर मेरे पास है, मैं पहन चुकी हूँ, और एक आपके पास में है, आप पहन चुके हो, आपका मन नहीं है पहनने का, एंड वी एक्सचेंज. हम लोगों ने बदल ली और हम लोग पहन के आ रहे हैं. वहाँ पे हमने एक स्टॉक रख दिया कि ये वाली ड्रेसेस हैं जो स्वॉप कर सकते हैं. ये हम 20 लोग हैं तो हमारी 20 ड्रेसेस हैं. तो इसमें से जो 20 लोग हैं, उसको जो पसंद आ रहा है किसी को, तो वो लेके उसको पहन सकता है. ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, स्वॉप. और एक होता है विंटेज. विंटेज को प्रिजर्व करना, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, अपने विंटेज को प्रिजर्व करना, फिर उसको इनहेरिटेंस की तरफ लेके जाना. तो वो भी सारी चीजें हैं. ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर सस्टेनेबिलिटी. और सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट नहीं करनी है, करके भी दिखाना है दैट यस वी आर डूइंग इट एंड दिस इज द राइट वे. Like what I see, जैसे कि बुटीक में से जो फैब्रिक बच जाते हैं, तो क्या करते हैं कि कोई उठा के ले जाता है, कोई कारपेट बना रहा है, कभी कुछ बना रहा है. क्या ऐसा अगर हम प्रैक्टिकली वेरेबल में अगर करना चाहें तो जो फैब्रिक्स बच जाते हैं उसको यूज करने की आप बात कर रहे हैं ना? यस. हाँ, क्यों नहीं. हम देखें, अगर आपने काफी, हम लोग पैच वर्क पे काम करते हैं, और जितने भी फैब्रिक्स बच जाते हैं, तो हम उसका बहुत ही सुंदर डिजाइन बन सकते हैं. देखो, क्रिएटिविटी, अगर फैशन, अगर आप अपने एक भी स्टूडेंट से बोल दोगे ना, या उनको एक कैंपेन दे दोगे, हमने वेस्ट से बनाना है, in the next couple of days they'll come up with amazing ideas. सिर्फ हम ये होता है कि हम उनको बोलते नहीं है, हम करना, हम आउट द बॉक्स जाके सोचना, ये बहुत जरूरी है आजकल. Applique is one thing and patchwork is another thing. वेस्ट फैब्रिक से ये हो सकता है. फिर हमने जो पहने हुए हमारे गारमेंट्स हैं, जो कि बिल्कुल ही हम सोचते हैं इनको अबेंडन कर देना है और ये हमें चाहिए ही नहीं. अब इनका भी एक तरीका है कि जो ये वाले गारमेंट्स हैं या जो सरप्लस बन जाती है फैक्ट्रीज में, उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं. फिर से उसको हम डिसइंफेक्ट करते हैं, उसको फिर फैक्ट्री में या आप अपने वर्कशॉप में ले जाकर उसको डिसइंफेक्ट करके उसको वापस आप नए डिजाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं. There's so many things that can be done. एक एक्सपीरियंस है, लाइक एक ना और एक आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगी. जैसे आपने मुझसे पूछा, सोनम कपूर है ना, उनके हस्बैंड का यही काम है, दे हैव द गारमेंट इंडस्ट्री, राइट?
and they are working on sustainable fashion and completely they have adopted it. तो बहुत सारे डिजाइनर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं. एक दिल्ली में भी शाहपुर चाट है जहाँ पे वहाँ पे भी छोटी छोटी वर्कशॉप्स हैं जहाँ पे सस्टेनेबल पे काम चल रहा है. तो जो थोड़ी बहुत लेसेस बच जाती हैं या फैब्रिक बच जाते हैं वो कैजुअल वेयर पे काम करते हैं. इवन डिजाइनर वेयर जितने भी होते हैं हैवी गारमेंट्स हैं उसके ऊपर काम करते हैं. जब हम लास्ट टाइम हमने विजिट किया था शाहपुर चाट में ना तब हमने इस चीज़ को देखा था वहाँ पे. हाँ, तो ये चीज है कि काम हो रहा है, जो लोग करना चाह रहे थे पहले कर रहे थे, लेकिन छोटे स्केल पे कर रहे थे. अगर हमने शाहपुर चाट में भी आपने जाके देखा होगा ना, तो एक तरह से बहुत ज्यादा कस्टमर नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है लोग ना कई बार सोच लेते हैं कि हाँ यार वेस्टेज से बना हुआ है या क्या है पता नहीं, या हम लोग रेंट आउट नहीं करना चाहते हैं या स्वैप नहीं करना चाहते. बहुत सारी चीजें हैं जो कि हर एक इंसान अपने तरीके से, किसी को नया खरीदना पसंद है या किसी को वेस्टेज में से लेना नहीं पसंद है. हर एक इंसान अपने उसके हिसाब से चलता है, अपने पैटर्न के हिसाब से और अपनी लाइकिंग के हिसाब से. तो हम अब जो देख रहे हैं हम कि ग्रोथ हो रही है, अवेयरनेस क्रिएट हो रही है दैट दिस इज नॉट बैड. पहले सोचा जाता था कि ये एक गलत कॉन्सेप्ट, दिस इज बैड, लेकिन अब ये अवेयरनेस आ रही है, नो दिस इज नॉट बैड, दिस इज द नीड ऑफ द आवर. और आज जो कि छोटे स्केल पे शाहपुर चाट में कर रहे हैं, आप देखो कि आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ने और बड़े बड़े डिजाइनर्स ने इसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया. अभी शुरुआत हुई है एंड दिस विल गो अ लॉन्ग वे. ये बहुत आगे बढ़ने वाला है क्योंकि अब लोगों को समझ में आ रहा है कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, और फिर भी वो पैसा कमाते हैं इस पे. सिर्फ एक तरीका मैसेज बॉक्स फ्रॉम अजोरा हाँ जी, बुटीक. मैसेज फॉर मैसेज बॉक्स में एक मैसेज है अजोरा बुटीक से. Will हाँ जी. technology rule the fashion world? Then what about daily wear launch wear? कैन यू कम अगेन विद द क्वेश्चन? आप एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट कीजिए. Yes, ma'am. Will technology rule the fashion world? Will technology be fashion? Will technology rule the fashion world? Then what about daily wear? Will technology rule the fashion world? Yes, ma'am. Is this the question? Yes. Then what about daily wear and launch wear? Okay. So when we talk about technology will rule the fashion world, then not completely. Not completely. Because we don't want a robotic lifestyle. Definitely, if you get technology, every time, we don't want a robotic lifestyle. So we're just trying to implement technology, in healthcare, in education, in you can say sportswear. So these are the areas where technology, the implementation of technology will be on a rising number. But if we talk about our own daily wear, it has to remain the same. Then we switch to sustainability. Then we switch to natural, lighter fabrics. What we are doing today. Then we see that they are cost effective also. Daily wear में वही चलेगा. Technology daily wear में नहीं आ सकता. That cannot be a part of our daily wear. Unless and until we're going out and we're hit by something like this and it becomes mandatory to wear technology. When you have to keep your state in which that you are not harmed by the existing aspects like pandemic or something like that, then you're wearing technology and you're moving out in the road on the road and you're walking and you need to be careful about that and you need to have precautions. There's this time when technology will be a part of our daily routine like it is now. But only when we move out of the house we like to wear the masks, right? Just to be taking precautions and protect ourselves from the environment. ये हो सकता है लेकिन टेक्नोलॉजी हमेशा हमारा पार्ट रहेगी डेली वेयर में, वो कभी भी नहीं हो सकता. Never. There
is one another question. What impact does technology have on our planet, good and bad? So the impact of technology, good Like that okay sustainability, we have. sustainable technology or wearable technology. So आपका question था technology, impact of technology, good and bad, right? Yes. So the impact of technology, if we say that bad, okay, we'll come to it, and good we all know. Good is that as far as human beings came into existence, उन्होंने technology पे work करना शुरू कर दिया. Whether we call it science, whether we call it anything else, we have been working on it, and we've made our life so easier. ठीक है? आज हमारा जो connection है, it is all based on technology. So we know all the good aspects about technology. Life has become more comfortable with technology. People are more connected. अगर कोई बहुत ज़्यादा दूर भी है, they are connected to us, and we get each and everything at the click of button. Everything is there. इतनी advancements हो गई हैं और हो रही हैं, technology को लेके, and transport से लेके we can travel. Each and every sector of life and area of life is driven by technology. And उसके ये सारे plus points हैं. And when we come to the bad points, yes, if you remember that we are totally dependent on technology now. So the generations who are living with technology, they're actually barring the reality of life. हमारे real connections जो थे ना, वो fizzle out हो चुके हैं. अब शायद हमें आसपास अपने फैमिली के साथ बैठना या बातें करनी इतना पसंद नहीं है. पीपल आर ऑल द टाइम बिजी विद द टेक्नोलॉजी. एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, वी आर लूजिंग द टच विद द रियलिटी. ये चीज है, बिकॉज वी आर फैसिनेटेड बाय द वर्चुअल वर्ल्ड. और दूसरा टेक्नोलॉजी का जो इम्पैक्ट है, यस, the species which are getting extinct. So many birds ये टेक्नोलॉजी की वजह से they getting extinct. कितने सारे स्पीशीज हैं जो कि टेक्नोलॉजी की वजह से भी हार्मिंग देम, रेडिएशन से, और बहुत सारे और फैक्टर्स हैं. तो बैड पॉइंट्स भी हैं और गुड पॉइंट्स भी हैं. तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसका एक बैलेंस मेंटेन करना है कि हम उसको बहुत ही सही तरीके से यूज कर सके टेक्नोलॉजी को, ताकि वो वैसे हार्म नहीं कर सके हमारे सिस्टम को. और हेल्थ हमारी बार होती है, विजन हमारी आईसाइट पे इफेक्ट होता है, बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स इसकी वजह से होती हैं. तो टेक्नोलॉजी की वजह से प्रॉब्लम्स भी बहुत है, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से कंफर्ट भी बहुत है. वी जस्ट नीड टू स्ट्राइक द राइट बैलेंस बिटवीन गुड एंड बैड. Ma'am, there is one another question in Yes, please. This question is by Rimjim. Okay. What technology dominate in the field of smart technology? I can't hear you, Radhika ma'am. What technology dominate in the field of smart ecology, sustainability development? Is technology overpowering? What technologies Yeah. dominate in the field of smart ecology, sustainability development? What technologies Dominate. dominate sustainability? This is what you're saying. Yes, ma'am. Yeah. So the technologies, like I said, dominate sustainability. Yes, they kind of dominate. Technology has always been overpowering every sector and every segment. क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना, if we think that we're going to survive आज फोन के बिना भी, we cannot, right? So technology is there, it's part of us now. We're living with it, and we are part of technology. So it is overpowering sustainability. Yes, it is. Definitely, it is. In so many ways. So इसमें ये है, if you come to this question, that how is it overpowering and dominating sustainability?
then I would like to say that, you know, technology is one thing. If we talk about computerized designs, if we talk about, you know, जितना भी हम manufacturing fast fashion का हो रहा था, everything is computerized. उसमें क्या हो रहा है कि हमारे को हमारे जो फास्ट फैशन की वजह से जो सस्टेनेबिलिटी है उस पर हम ध्यान ही नहीं दे रहे. हम कोई भी फैब्रिक यूज करते हैं सस्ते से सस्ता, क्वालिटी का ध्यान नहीं रखते. हम उसको जल्दी मैन्युफैक्चर करने के चक्कर में हम उसको इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो कि हमारे वीवर्स और आर्टिजन्स पहले हाथ से कर रहे हैं. तो ये सस्टेनेबिलिटी पे तो इसका इफेक्ट आया ही आया है, बिग टाइम आया है. तो बहुत सारे फैक्टर्स यू नो सस्टेनेबिलिटी को डोमिनेट करते हैं टेक्नोलॉजी के. यस दे डू. Thank you. Anybody have any questions regarding sustainability, fashion, or Did Rinjin get the answer or उसको कुछ पूछना और? hello, Rinjin? Rinjin, please unmute the mic. Done, ma'am. Okay. Answered. Done. Another question from Ruqayya Ansari. Okay. How sustainable fashion can help us to move beyond fast fashion? So sustainable fashion can help us to move beyond fast fashion in every way. In every way. If we just limit our choices, you know, if we become wiser with our choices, yeah, then sustainable fashion can, you know, move this fast fashion behind it in every which way. If I buy one t-shirt or one, you know, this kurti, okay, now whatever I'm wearing today, I can wear it multiple times, you know, in different ways. Today I might be wearing it with a salwar, with a Pakistani salwar, but tomorrow, if I feel like, I can wear it as a dress, you know, minus the salwar. I am making one right choice, picking one thing and using it in multiple ways. So fast fashion has got nothing to do. But what I did was I preserved the quality. क्वालिटी है, इट लुक्स एलिगेंट, इट लुक्स नाइस, तो हम इसको एक ही चीज को बार बार डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं. तो फास्ट फैशन में क्या है, सिर्फ एक यू नो एक होड़ है कि हमें ज्यादा खरीदना 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 खरीदना. बीइंग फ्रॉम फैशन इंडस्ट्री आई शुड नॉट से दिस, लेकिन मेरा जो दिल है और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अब भी सोचने लगे हैं that we need to go back to our basics, we need to go back to our ground, because not everything is not about making money. और अगर हमें लग रहा है कि हम फास्ट फैशन करके we were making more amount of money because we have, you know, multiple and fast moving orders and it keeps rolling and rolling and rolling, तो sustainability से नहीं हो सकता, then we are wrong. हाँ, हैंडमेड प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू है वो आज भी ज्यादा है. हम सिर्फ सस्ते के चक्कर में और ज्यादा खरीद लेते हैं, लेकिन अगर हम अपनी सही इन्वेस्टमेंट करें तो शायद हम एक पीस खरीदें और उसको अलग अलग तरीके से मल्टीपल तरीके से यूज करें और रखें अपने पास में, वो ज्यादा अच्छा है बजाय. और उससे हम कितना अच्छा बड़ा काम भी कर रहे हैं. पैसा हम दोनों तरीके से बना सकते हैं, लेकिन हम काम कितना अच्छा कर रहे हैं. वी ट्राइंग टू सेव आवर एनवायरनमेंट एंड वी ट्राइंग टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन फॉर द फ्यूचर जनरेशंस टू कम. One another question from Adorer Biti. Fashion forecast for 2021. What is? Fashion forecast for 2021. Fashion forecast for 2021. So for this season, you know, I already forecasted one color, that color of you know, nudes. All nudes will be in fashion this year. And for 2021, it has become versatile now. By the end of this year, people are wearing whatever they like. You know, we are picking up actually from our wardrobes, which is existing, which is there. And this shall run for 2021, you know, for the coming year as well. People will have all sorts of, you know, designs coming in. We won't stick to any one particular design. Nudes, yes, it was the color for 2020, and 2021 will have a mixed palette of
all the colors, of all the colors. And 2021 is one year. Let me tell you, in this coming year, people will be more versatile, will be more experimental with their clothing, and we will not have one particular color as in the fashion trend. So that will be the year which will mark again, something revolutionary in the name of fashion. And the forecasting won't, be there for 2021 at all. It won't work because it'll be a mixed palette of colors. It'll be a mixed palette of designs. So this is what we're looking at 2021. And after 2021, if we talk about 2022, then things, yeah, look more wiser. And then again, we'll pick on to the fashion trends and everything will come back to normal. Right. Last time I attended a WGSN meeting, तो उसमें फैशन फोरकास्ट में 2021 में ना मोस्टली फ्लैट सर्फेसेस, बीट्स, ऐसी चीजें जो 2021 में आएंगी वो ये थी, मतलब बिल्कुल न्यू कलर्स. आपसे एक क्वेश्चन पूछिए राधिका मैम, क्या बोल रहे हैं? लाइक लास्ट टाइम जब मैंने WGSN की मीटिंग अटेंड की थी, हाँ जी, तब उसमें भी यही था कि आपके जो कलर्स आएंगे 2021 में वो यही थे, न्यूड पैलेट्स आएंगी सारी, लिनन लिनन पे काम होगा, कॉटन पे काम होगा, कोई भी इतनी हैवी एम्बेलिशमेंट नहीं जाएगी. या जो अभी रिसेंट होके हटी है WGSN की मीटिंग, मोस्टली इस टाइम जो काम होगा 2021 में इट्स ऑन सस्टेनेबल फैशन. या एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. Yes, ma'am. Mostly on technology पे ही काम होगा, like just like aviator look and all things. बिल्कुल, और हम अपना फ्यूचर देख भी ऐसे ही रहे हैं. अवेयरनेस इतना ज्यादा हो गया है that people are getting more wise now. Everyone is, and we're evolving, as human beings, and we want to do and contribute back to our planet in some way or the other. Thank you from Adora Boutique to Shivali ma'am. Thank you, Dipanshi. And another question from Rimjim. Yeah. Is it possible to develop sustainable, eco-friendly, smart technology construction within the framework of social policy? It is feasible to develop. It is possible to develop sustainable, eco-friendly, smart technology construction in the framework of social policy. Yes, it is. It is very feasible to develop that. As we already spoke about it, that sustainability and technology, we can work hand in hand, together, keeping in mind. And social policies as well. It will become, it has a huge social impact, and we are already working on these policies where we have to have, technology with sustainability, keeping in mind the eco-friendly. Now, technology will help us to keep a track of eco-friendly material, eco-friendly textiles, eco-friendly usage. Everything eco-friendly. It has to be kept. We need to keep a record, and we need to keep a track of each and everything. So there is where this is where technology comes in. And if we talk about wearable technology, then again, it is part of our. You can call it a fashion statement in the coming years, or you can call it a necessity of healthcare, of education, of sports. So yes, everything will come under social policy as well, and it is already there in social policy. We are working with the government body on sustainability, and I'm already working on one project with them, which shall come into life soon. So it is, everything is under social policy, and the government is also concerned about the wearable technology, how we can club these two together. So people like me, people like you, we're all working together, on this already. So yes, your question was very relevant. It was really nice. Another question from my side. Yes. Like government को भी I think
कोई स्टेप लेने चाहिए अगर हम सस्टेनेबल फैशन, अगर सारे डिजाइनर्स एक ही वे पे चल रहे हैं तो गवर्नमेंट को भी स्टेप लेना चाहिए कि हमें भी थोड़ी सी हेल्प आउट करे या सस्टेनेबल फैशन में हेल्प करनी चाहिए। आई थिंक सो। देखिए, अगर हम इंडियन गवर्नमेंट, हम लोग यहाँ पॉलिटिकल उसमें डिस्कशन नहीं करना चाह रहे, वी डोंट वांट टू नहीं गेट इनटू लाइक दैट। ऐसे कौन से स्टेप्स है जो लाइक हेल्प कौन से कर सकते हैं हम? अगर हम लोग सही आइडियाज के साथ अप्रोच करें ना, if we have good ideas to build a market, government obviously they're not going to help us with the funds, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉलिसीज डिफरेंट हिसाब से वर्क करती हैं, so we don't get any relief, funding relief from the government, but yes, we can always get the support of the government bodies or the bodies which are in association with government or working with the government. We can put in our innovative ideas to them, and if they like it, then why not? And there are bodies which are working along with the government. And as I told you, that we are working on one project that should come into light soon. And let's see, how it goes. And sustainability has become, even these bodies, they have been promoting sustainability for long now, for years. लेकिन ये अब सही वक्त आ गया है जबकि इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम उस टाइम के बीच में हैं जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और पूरी दुनिया आगे आने वाले टाइम में इसको करेगी और ध्यान में रखेगी। Though we will still have people who will go on the normalcy of life, or who wouldn't want to do sustainability, they would rather do technology. या वो जैसे काम कर रहे थे वो वैसे ही करेंगे। But then yes, more and more awareness is being created, और government bodies या जो bodies हैं जो government के साथ काम करती हैं, they're already working into that, and lots of research is being going on technology as well, क्योंकि future हम technology काफी देख रहे हैं यहाँ पे। Another very interesting question from Hemlata. Okay. How COVID-19 affects on fashion? How? How COVID-19 affects on fashion? How COVID-19 depends on fashion. So do we see that COVID-19 has brought us back to our pajamas and t-shirts? So it has actually hindered, fashion in a great sense. लेकिन क्या हो गया अब, जैसे अब webinar है, today I'm interacting with you all. So I have come all dressed up the way I would have been physically present with you. So the webinars, again, they're one thing which are, under this stress and this crisis, they're helping us just to keep our spirit high, just to, be dressed up for the webinars. And everyone is doing. So fashion is there, fashion will remain there. Because if women are there, then fashion is there. So the glamour has to be there. So we cannot, COVID-19 can also not hit us back on fashion. Never. Thank you. Another question from Bhavna Davar. Yeah. With the awareness among sustainable fashion, what impact will be on Khadi industry? Khadi industry will grow. It will grow because even if you see the speech of our PM and everybody, we are working on khadi. So my last collection was on khadi, which I did, and it had come out beautiful, and the headgears were in khadi and everything. So we are promoting khadi as well. Now, when we talk about preserving our heritage and culture, this is where khadi comes from, right? तो वो तो होगा ही। खादी आने वाले टाइम में it will give a boom to khadi industry as well. Thank you from Rimjim, from Shivali ma'am. My pleasure, Rimjim. From Bhavna. Bhavna, thank you. From Hemlata. And from Rukaya Ansari. Okay, I didn't get the name, but then Ansari and whatever. So thank you so much, and my pleasure. Hope you're enjoying the session with me. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much for your valuable time, ma'am. It's very interesting session. Hope so MD queries so much. are clear now. I hope that Yes, ma'am. Yes, boss. We are looking forward to your cooperation and help and support for our students.
want to? Definitely, my pleasure. I would be there to support in every which way I can, and all my love and motivation and all in good spirits to all the students of TIFF. And you all are very creative. I've seen you, and just keep your spirits high and let's make a difference to this fashion industry the way we have done it, and the way let's bring about a change and change the face of fashion actually in real sense. And thank you so much. It was lovely, interacting with you all. Thank you so much, ma'am. आप लोगों को माइक ऑन करना बाय बाय राधिका मैम। Hi, Sagar. वैसे अच्छे लग रहे हो मैम आप, गीतांजलि मैम भी अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। और आप कैसे हो सागर? बस मैम सही चल रहा है सब फिलहाल तो। Everybody unmute your mic now. हाय मैम, कैसे हो? ये कौन है? हेलो मैम। मुस्कान हूँ यार। अच्छा बॉम्बे। ओके ओके, आप अपने कैमरास भी ऑन कर सकते हो if you want. हेलो मैम। मुझे बैठना था, लाइट नहीं आ रही। बैठे हैं, लाइट नहीं आ रही है भैया। कोई कैमरा ऑन कर रहा है? विदाउट मेकअप फेस दिखेगा किसी का? हाँ गीतांजलि मैम आइए, सही है। और कौन आया है? कौन चला गया? काफी बच्चे चले गए। मैम कॉलेज कब से स्टार्ट हो रहा है? हाँ मैम बता दो, बोर हो गए घर पे। जब COVID-19 का इफेक्ट चला जाएगा then we will start with that college. फिर तो दुआ करो कभी ना जाए। मैम मैंने तो हॉस्टल में से सामान भी उठा लिया सारा। चुप बोल। हेलो मैम, कैसे हो आप दोनों? बढ़िया, आप बताओ अंजलि। ठीक है मैम, सब कुछ ठीक। आप ओहो कॉलेज मलिन। करते आना। मंडे से हमारे हेलो मैम। ए हाय सिमरन। हेलो। हेलो मैम। कैसे हो? बढ़िया, आप कैसे हो? हेलो मनलीन अभी भी काम कर रही है। मनलीन अभी भी काम कर रही है। हेलो ज्योति मैम। हाय ज्योति मैम, कैसे हो? ज्योति मैम हेलो। तीन देवियाँ। नमस्कार। मैम आप तो करके दिखाओ, नमस्कार कैसे करते हैं। राधिका मैम। अच्छा जी, मुझे लगा 2 महीने में भूल गए आप। ऐसी चीजें मैं कभी भी नहीं भूलती। गुड आफ्टरनून मैम। ये कौन है? किसने बोला? हिमानी। हेलो मैम। हेलो, कैसे हो बेटा? मनलीन कर क्या रही है नीचे देख के? काम कर रही हूँ। सारी काम कर रही है। वाह, दिखाता सही की कर दी है।
पंजाबी है तेरे पल्ले नहीं पैनी। मैं कह रही हूँ तेन मेरे पल्ले पा दे मल्ली। सागर कितना बोल रहा है सागर अपना कैमरा ऑन कर तू मेकअप नहीं किया मैम पेपर्स नहीं कब यार होंगे? मेकअप नहीं करता। कोई नहीं इतना ही दिखा दे ऐसा करते हैं कि जो बीएससी थर्ड के एग्जाम्स हैं हम पहले ले लेते हैं, जिन्होंने काम नहीं भेजा। देख हाँ राइट राइट। दिख गया दिख नहीं कैमरा? रहा नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा दिख रहा देख देख रिमझिम भी है हाँ, बट हाँ, दिख गया। मुझे रही है स्क्रीन शो हो रही ये है। यहाँ पे होगा। हाथ मैं कुछ- टाप ना ओए होए बड़ी स्क्रीन हाँ, आ रही दिख है। देखो मैम क्या हो गया, दाढ़ी मुझसे नहीं आ गई। हेलो अंजलि दी। कौन बोला? पहचानो कौन? सिमरन बोली ज्योति मैम दिख नहीं रही मुझे। मैं दिखाई नहीं रही। क्यों नहीं दिखा रही? दिखा। हेलो रिमझिम, हेलो हिमानी, हेलो रुकैया, हेलो कैसे हो सब? सब हेलो बढ़िया। जी। हेलो मल्ली तमन्ना नेरे च बैठी है, लाइट ऑन कर। तू सब तो सामने आई हुई है मेरे। प्रिया कहाँ गई? मैं आपको बोल रही थी मैम आपको इधर फेस करके बैठना था फिर आपका फेस क्लियर लाइट नजर फेस आना में आना चाहिए था मैंने ना। आपका बहुत हाँ। मैसेज पढ़ा। नेक्स्ट चलो सेशन कोई में ना ना नेक्स्ट टाइम के मैं लिए कितने दिनों बाद देख रही हूँ क्लास को। अब सही नजर आ रहा है आपका फेस वो जल्दी में मैम ऐसे बैठी है शायद। हाँ अब अच्छा लग रहा है, पहले बैठ लेते ऐसे। नेक्स्ट टाइम से और भी सेशन होंगे। ये शोर ये कौन कौन कर है? रहा है? पीछे भांडे कौन खड़का मोदी रहा जी है? ने आज तो नहीं बोला मोदी ने कुछ। आज नहीं बोला, मेरे ख्याल कल बोला था। रविंदर भी आ गए ओहो रे मेरे गीतांजलि सामने मैम कौन से कमरे में चले गए आप? अभी आ रही है। पुल्लर साहब। कहाँ गई गीतांजलि? हाँ जी। गीतांजलि मैम छुप गए। ये वो जरा आगे आगे लास्ट से बाहर चले गए हैं कैंपस दिखाने। ठीक है मैम मैम, दिखा थैंक रहे यू। थे। बहुत दिन के बाद हमने कैंपस का दर्शन कर लिया। कर लिया दर्शन? हमारे बैग भी दिखा दो। दिखा दे। बैग क्या मेकअप करके आए थे पूरा? हेलो सर कैसे हो? हेलो सर। हेलो सर। हेलो हेलो सर, सर कैसे हो आप? सर कितने अच्छे है सर। आ गए हाउ आर यू सर? सर, थोड़ी भी दाढ़ी मुझसे आ गई है, दीवार लगे लगे। और सर कितना रोहित सर भी है। सर ने सुनाई नहीं दे रहा सर नु पता नहीं लग रहा। सर हेलो सुन रहे हो? सर है तो हेडफोन्स लगाया नहीं सुन रहे। हेडफोन तो मैम ने लगाया। मैम हेडफोन ਕੱਢੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ। मैं हेडफोन मैम लैपटॉप के मैडम हेडफोन फिर ला ले मैडम फिर ला ले मैम हेडफोन ਕੱਢ ਦੋ। तो उन ਕੰਨ ਚੋਂ ਨਹੀਂ तो हाँ हाँ अभी सुनेगी। हेलो सर कितना हम बोल रोहित सर, हाउ आर यू सर? रोहित सर कितने? अभी भी नहीं सुन रहा उनको वो रहे रोहित सर ओह पीछे। सर देखो ओए ओए सर की गल घर वाली कुटदी ने की हो गया सर इधर बैठे? सर ने घर के काम बारे कीते हैं सर अखा थल्ले देखो सर ब्लैक डॉट्स आ गए। हाय रोहित सर कैसे हो? कहाँ है रोहित सर? सर पीछे हैं। इसीलिए यार सर रोहित सर मास्क लगा के बैठे हैं सर हेलो। मास्क तो उतारो, जोर से। आवाज नहीं जा रहा। सर आवाज नहीं आ रही। घरे बैठी केड़ी मोटी होगी टोडे चो? कोई भी नहीं हुई। पतली है। तू पतला हो गया मक्खियां का पता नहीं मैं तो पहले बार गई है। मैंने कोई फर्क नहीं पहला पर नहीं मैं मोटी नहीं हुई मैं पतली हो गई हेलो रोहित हेलो सर। सर हेलो। सर इधर क्यों घूर रहे हो? सर बोलो तो बोल ही नहीं रहे। सर ने सुन ही नहीं रहा भैया तो रोज है ना।
अरविंदर कौन कौन है? सबमिशंस नहीं दे रहे आप लोग? जाओ चलो बाय बाय। ये वीडियो कॉल यहीं पे खत्म होती है। बाय 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 गाइस। बाय। हमारा तो लैपटॉप ठीक नहीं हुआ अभी अरे तक ना, नहीं है ना? सर बना रहे हैं सर। 1 वीक करते करते 1 साल निकल गया। भी कहा सर 1 साल बनाया, अभी 4 महीने बचे हुए। निकल गया 1 साल बेटा, 2020 नहीं निकला सर। सर ये लॉकडाउन कब तक चलेगा? अपन नामी का हंस रही है सर चल सर आप ये बताओ ये लॉकडाउन कब खत्म होगा? लॉकडाउन जब सरकार जाएगी तब खत्म होगा। आप नहीं चाहते खत्म हो? मैं चाहता हूँ कि आज ही खत्म हो जाए, आप आज ही आ जाओ कॉलेज, मैं तो ये चाहता हूँ। ना इतनी जल्दी थोड़ी खत्म होने लगा है कोरोना। कैसे? ये देख क्या बोल रहे हैं ये पीछे से? कौन बोला ये? ये मुस्कान। तमन्ना भी है। इन्ना दे सारे दे वीडियो कैम ऑफ ने मेकअप करके आएंगे। नहीं टी-शर्ट ਤੇ ਪਜਾਮੇ ਚ ਬੈਠੇ ਵਧੀਆ ਥੋੜੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਕਰ ਦੋ ਏ। वाओ ਅਸੀਂ बड़ा ਇੱਥੇ ਹੈ बैठे हैं। मेरा तेरा रिश्ता पक्का दिखाना। कोई किसी ने नहीं करवाना ते किसी ਦਾ। रोहित सर ने देखो ਤੁਸੀਂ कितने स्मार्ट लग रहे हैं। मैंने सर बंद कर दिया था आपका, अभी तो कैमरा बंद मेरा फोन के बैटरी पे ਤੁਹਾਡੇ ਚ PUBG कौन खेलदा है? और हो रहा जो खेलते हैं। सागर को मैंने फोन किया था 2-3 बार, इसको फोन भी नहीं किया। सर मैंने आपको फोन किया था, आपने नहीं उठाया था। आप पता नहीं कहाँ। हाँ